اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب کاروان مجلس سب کو میری طرف سے السلام علیکم و آداب. سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جس نے مجھے آج یہ موقع بخشا کہ میں آج گوگل کی عوام کے بیچ میں آپ لوگوں کے تاثرات، آپ لوگوں کے کھیل کا مظاہرہ دیکھ سکی اور سن سکی. سب سے پہلے میں گوگل والنٹیئرز ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے یہاں پر آمنترت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مالیگاؤں کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی جنہوں نے یہاں اپنی جیت درج کی. اس کے ساتھ ساتھ میں دونوں ٹیموں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کیونکہ جیت ہار معنی نہیں رکھتی بلکہ کھیل معنی رکھتا ہے. آپ کا جوش، آپ کا جذبہ، آپ کی پریکٹس اور آپ کا وہ شعور جو آپ کھیلتے کھیلتے یوز کرتے ہیں وہ معنی رکھتا ہے. اور میں جب میچ چل رہا تھا تو میں پوائنٹس نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ میں آپ لوگوں کی اس کھیل کو دیکھ رہی تھی کہ کس طریقے سے ہمارے جو بچے ہیں ان میں کتنا شعور ہے کہ وہ کس طریقے سے کھیل رہے ہیں. تو مجھے لگا کہ تکرار جو ہے ایک دوسرے کے نیک ٹو نیک رہی اور سبھی جو کھلاڑی ہیں بہت اچھا مظاہرہ انہوں نے اپنے یہاں پہ دیا ہے. اور یہاں پہلے ہی میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی جو یہاں کے تسکین صاحب ہیں، جو کھلاڑی ہیں، جو پہلے ہی نیشنل کھیل چکے ہیں. میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ گوگل کو الگ الگ مت بانٹیے بلکہ آپ اپنے اس پورے علاقے کے جتنے بھی ہمارے والی بال کے شوقین ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو پریکٹس دیں تاکہ وہ آپ کی طرح ہی کل آگے بڑھیں، کل آگے ہی نیشنل لیول پہ ہو جائے. دوسرا میں ضرور یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہائر سیکنڈری گوگل کے اسٹاف کا جنہوں نے آج چھٹی ہونے کے باوجود اپنا یہاں پہ اسٹے کیا اور خاص کر ہماری عید الاضحیٰ ہونے کے ساتھ ہی یہ یہاں پہ پریزنٹ رہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنے بچے، کیونکہ اتنا جوش اور جذبہ میں کھیل میں نہیں دیکھ رہی تھی جتنا آپ کی شائقین میں تھا، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یہاں پہ میچ دیکھ رہے تھے یا ہمارے بزرگ دیکھ رہے تھے. تو آنے والا فیوچر ہمارا جو ہے یہی بچے ہیں. ہمارے اس ڈسٹرکٹ رامبن میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ رامبن میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، چاہے وہ سپورٹس ہے، چاہے وہ کلچرل اکیڈمک، چاہے کلچرل گیمیں ہیں. کسی قسم کی کمی یہاں پر نہیں ہے بلکہ اگر کمی ہے تو پلیٹ فارم کی ہے. کیونکہ آج اگر آپ کو یہاں پر الگ سے والی بال کورٹ ہوتا تو شاید آپ ہائر سیکنڈری کو ڈسٹرب نہیں کرتے. تو میں آپ سے یہ ضرور وعدہ کروں گی کہ آپ یہاں پر زمین کا جو وہ پیرامیٹرز مجھے دیجیے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو ایک والی بال کورٹ دیا جائے گا جس میں آپ کا یہ میچ جو ہے پورے طریقے سے، اور یہاں پر جو آپ بار بار ڈسٹرب ہو رہے تھے کیونکہ ڈسٹ کافی اٹھ رہی تھی تو اس ڈسٹ سے بھی نجات ملے گی. اور بالکل الگ سے ایک والی بال کورٹ ہوگا جہاں پر اسکولی بچے بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے اور وہ بچے جو کھیل میں شوق رکھتے ہیں وہ وہاں ہر وقت کھیل سکتے ہیں. یہاں پر میں ہمارے جو پرنسپل صاحب اخرال سے بہت اچھا انہوں نے، میں تو پہلی بات دیکھ رہی ہوں کہ لیکچرر صاحب جو ہیں وہ اتنا شوق رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں، کیونکہ کھیل کے ساتھ ساتھ پڑھائی کا ہونا بہت ضروری ہے، ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. اور خاص کر میں بھی اپنی طرف سے گوگل کے پیرنٹس سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اگر آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ ضرور جائیے، کیونکہ آپ کو اپنے بچے کی کمیاں، اس کا ٹیلنٹ آپ کو وہاں پر پتا چلے گا، اس کی قابلیت وہاں پر پتا چلے گی. جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارا بچہ کس لیول پہ جا رہا ہے تو اسی لیول سے آپ اپنے بچے کے ساتھ ڈیل کریں گے، اس کو پڑھانے کی کوشش کریں گے. تو میں ضرور چاہوں گی کہ ان کی یہاں پر جو انہوں نے ریکویسٹ کی سبھی پیرنٹس سے
मैं जरूर चाहूंगी कि आइंदा आने वाले वक्त में जब भी पेरेंट्स टीचर मीट होगा तो वहां पर जरूर हमारे पेरेंट्स जाएंगे, ताकि अपने बच्चे का फ्यूचर जो है उसको आगे ले जाने में टीचर की हेल्प करेंगे। वरना हम सिर्फ टीचर पे छोड़ते हैं कि टीचर जाने और बच्चा जाने, ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स ही गाइड है। तो जब पेरेंट्स की तरफ से भी गाइड मिलेगी, टीचर को भी हेल्प मिलेगी, तभी हमारा बच्चा जो है वो आगे जा पाएगा। दूसरा, मैं यहाँ पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि क्योंकि अगर मैं डीडीसी चेयरपर्सन हूँ तो डेवलपमेंट को लेके मेरा जरूरी पार्ट है, क्योंकि ये तो खेल था, लेकिन इसके साथ जब तक डेवलपमेंटल का पार्ट नहीं जुड़ेगा तो शायद इसमें कुछ जो है कमियां रहती हैं। यहाँ पर हमारे जो है वाली साहब ने, बाकी हमारे बुजुर्ग है जो पुराने खिलाड़ी रहे हैं, उनकी डिमांड उनकी तरफ से आई है कि एक तो आपका जो गूगल से सरगली का रोड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है, क्योंकि मैं आज मेरा तीसरा विजिट यहाँ पे गूगल के अंदर है, लेकिन जब भी देखा तब मैंने सबसे अहम डिमांड आप लोगों की जो है रोड देखा है। तो मैंने रोड को टेकअप किया है, इंशाल्लाह जल्दी ही स्टेट प्लान या किसी प्लान के अंदर इसको हम अप्रूव कराएंगे। उसके साथ साथ हम इसकी DPR PMGSY डिपार्टमेंट के अंदर भी जल्दी ही करने जा रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में आपका जो सरगली टूरिस्ट पॉइंट है, स्पॉट है, जैसे हाल ही में हमने समर कार्निवल जो है नील टॉप के अंदर किया, वहाँ पर इसलिए किया कि वहाँ पर जो है हर आदमी पहुँच सका, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी थी। यहाँ पर अब 18 से 19 तारीख को भी समर कार्निवल आपका सरगली के अंदर होने जा रहा है, और उसको क्योंकि अगर रोड होती तो शायद जहाँ 1000 लोग आते वहाँ पे 1000 लोग पहुँच सकते थे, लेकिन कनेक्टिविटी न होने की वजह से हमारे बहुत सारे ऑफिसर साहिबान ये गुरेज कर रहे हैं कि हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। आपकी ये डिमांड बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड है, क्योंकि टूरिस्ट है तो सब कुछ है, क्योंकि टूरिज्म के बनने से ही हमारे इलाकों की कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको सरगली, पुगल सरगली का रोड दिया जाएगा, ताकि आपका वो टूरिस्ट पॉइंट भी वहाँ पर डेवलपमेंट हो। यहाँ पर हमारी DDC काउंसलर बशीर उनियाल साहब ने भी आना था, लेकिन उनकी सेहत नासाजी की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सके। उन्होंने सरगली के लिए अपने फंड से शेड रखा है, जिसमें अगर बारिश हो तो उसमें छुपने के लिए कुछ जगह लोगों को चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही आपकी रोड कनेक्टिविटी बन जाती है, क्योंकि सरगली आप बीट में आता है, हमने डाला हुआ है, तो आप बीट में जब कोई टूरिस्ट में कोई स्पॉट आता है तो उसको आस्ता आस्ता हम डेवलप करते हैं, ताकि आने वाले वक्त में आपका अच्छा स्पॉट बने। दूसरा, यहाँ पर बैंक की डिमांड बहुत देर से है और मैंने वो भी टेकअप किया हुआ है, उसका जो इस वक्त प्रोसेस चल रहा है, फिजिबिलिटी भी जा चुकी है, इंशाल्लाह कुछ टाइम उसमें लगेगा, तो जरूर आपके इस गूगल एरिया में आपको एक बैंक का भी हम देंगे। उसके साथ साथ हमने खिदमत सेंटर का भी यहाँ पर जो है कोशिश की है कि जब तक यहाँ पर बैंक की ब्रांच आती है तब तक यहाँ पर जो है आपको खिदमत सेंटर दिया जाएगा, ताकि 10,000 तक जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी, चाहे ओल्ड एज पेंशन होगा, चाहे बाकी ट्रांजेक्शन होंगी छोटी मोटी, वो खिदमत सेंटर तब तक चलाएगा जब तक यहाँ पर आपकी बैंक की ब्रांच नहीं आती है। हमें जो आते ही हमारे जो SDM साहब बनिहाल के, उनके वालिद मोहतरम मिले, उन्होंने एक ही डिमांड की कि मुझे यहाँ पर बैंक होना चाहिए, तो इंशाल्लाह इस चीज में हम लगे हैं, ताकि आने वाले वक्त में आपकी जो मुश्किलातें हैं वो हम दूर कर सकें। दूसरा, आपकी जो ये हायर सेकेंडरी है, काफी मुझे नाउमीदी होती है इसको देख के कि काफी पुराने बिल्डिंगे यहाँ पर है, इसमें कुछ और बिल्डिंगे, कुछ रूम्स यहाँ पे सेंक्शन आए हैं। मैं गुजारिश करूंगी हमारे, क्योंकि प्रिंसिपल साहब यहाँ पे नहीं है, तो इंचार्ज प्रिंसिपल साहब से कि इसको डिसमेंटल करके जो साथ वाली बिल्डिंग है यहाँ पर वो कमरे बनाए जाएं, और आने वाले वक्त में आप रिकमेंडेशन दीजिए जो आपकी ये जो नीचे 2 बिल्डिंगे हैं, क्योंकि जब तक इनको आप डिसमेंटल नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम जो बिल्डिंग का है वो सीधा नहीं बन पाएगा। तो ये डिसमेंटल करके यहाँ पर इस ग्राउंड को वाइड किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में हमें कोई भी गेम या कोई भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाना हो वो हम बना पाएंगे। उसके साथ मैं, क्योंकि मुझे काफी लेट हो गया है, मैं माजरत खा हूँ, मुझे जल्दी वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत एक दूर दराज इलाके में मेरा विजिट है। मैं जरूर इंशाल्लाह हम सरगली के मुकाम पे जरूर 18 और 19 तारीख को मिलेंगे, क्योंकि मुझे पिछली साल बारिश की वजह से हम लोग जो है वहाँ पर नहीं जा पाए थे, लेकिन इस साल
मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें उस दिन बारिश नहीं होगी, मौसम क्लियर होना चाहिए, तो हम जरूर सरगली के मुकाम पे आएंगे और आप लोगों से दोबारा वहाँ पे मुलाकात करेंगे। बाकी छोटे मोटे इश्यूज हैं, जैसे आपका एक मेन अहम आते आते ही मैंने जो गुगली नाले की बात आप करते हैं, जिस वक्त हम आए तो मेरे साथ हमारे जो रियाज साहब हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने आते ही उस नाले का जिक्र किया क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट एक लोकेशन है। तो उसके लिए जो है आपका पैसा सेंक्शन आ चुका है, 37 लाख उसका सेंक्शन आया है और उसका टेंडर मैंने उनको बता दिया कि 1 हफ्ते के अंदर उसका टेंडर पास हो जाएगा और 15 से 20 दिन या 25 दिन के अंदर आपकी टेंडर अलॉटमेंट होगी, आपका काम वहाँ पर लग जाएगा। क्योंकि 20 मीटर का है वो, 20 फुट का है वो जो वहाँ पे कलवर्ट बनेगा, काफी बड़ा कलवर्ट बनेगा, ताकि आपके वहाँ पे जो बच्चे, क्योंकि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी भी बारिश होती होगी, क्योंकि यहाँ अगर कम होती होगी लेकिन ऊपर जो हायर रीचेस है उनमें ज्यादा बारिश होती है, तो उस वजह से वो नाला काफी बढ़ जाता होगा, जिस वजह से आप लोगों को क्रॉसिंग करने में दिक्कत होती होगी। बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त PMGSY डिपार्टमेंट ने उसका DPR बनाया, मुझे बहुत नाउमीदी होती है ऐसे इंजीनियरों से कि वो कौन सा इंजीनियर था जिसको इतना बड़ा नाला नजर नहीं आया। उसने उस DPR के अंदर उसका ब्रिज रखना चाहिए था, ताकि रोड के साथ ही उसका ब्रिज पहले बनता फिर रोड बनती, ताकि आपको ये दिक्कत आज देखनी नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस कलवर्ट को बनाया जाए, ताकि आपका जो आना जाना है वो बहाल रहे और बच्चों को, खासकर बच्चों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो मैं जरूर इंशाल्लाह चाहूंगी कि आपका ये जोश और जज्बा सपोर्ट्स के लिए रहे। लेकिन जैसा यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि सपोर्ट्स के साथ साथ आपको एजुकेशन में भी ध्यान रखना है। अगर हमारे बच्चे हर रोज यहाँ सुबह आके पूरा दिन यहाँ मैच देखते रहेंगे तो पढ़ेगा कौन? तो इसमें भी आप लोगों को एक सिस्टमेटिक वे से सपोर्ट्स को ले जाना है, सपोर्ट्स को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये एक जिंदगी का पार्ट है और इस नशे से दूर रखने के लिए एक अहम जो एंटरटेनमेंट है और दूसरा अपनी बॉडी को फिट करने के लिए सपोर्ट्स बहुत जरूरी है। तो दोनों चीजों को साइड बाय साइड चलाना है, ताकि सपोर्ट्स भी चले और एजुकेशन भी चले। आने वाले वक्त में आप लोगों को इस पर ध्यान देना है। तो मैं जरूर यहाँ जो सिक्योरिटी हमारे पर्सनल है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और उनके साथ साथ वॉलंटियर टीम गूगल की और खासकर शिराज साहब और चेयरमैन जो वॉलंटियर टीम है इनका, जिन्होंने आज इस फंक्शन को बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और जोश और जज्बे वाला फंक्शन बनाया है। मैं जरूर उम्मीद करूंगी कि आने वाले वक्त में जो ये बच्चे आज यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे थे, ये आने वाले वक्त में और अपने आप को जो है इसमें दम करेंगे और आने वाले वक्त में ये भी जो है नेशनल लेवल पे जाएंगे। और दूसरी गेमें यहाँ पर काफी सारी गेमें, क्रिकेट है, बाकी गेमें यहाँ पर बाकी सारी गेमें हैं, उनको में भी आप लोग जो है अपना अपना जो है टैलेंट शो करें। और आने वाले वक्त में हम कोशिश कर रहे हैं रामबन के अंदर कल्चरल एकेडमी लाने की, ताकि आने वाले वक्त में जो भी टैलेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो वहाँ पर उभरे और उनको सीखने का मौका मिले। तो इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। शुक्रिया, वस्सलाम।